1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 कोरिंथियंस 3 चैप्टर, सैम्स 109, 110, 109, 110, 111, 112 चैप्टर्स। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज पहले कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, भजन संहिता 109, 110, 111, 112 अध्याय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से। हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, इन वचनों के अंदर से होकर चलते समय खुदा हमें पवित्र आत्मा सहायता कर, हमारी समझ, ज्ञान, बुद्धि में ये वचन को ठहरने दे और इसके मनन में से हमारे जीवन में इसके फसल आने दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों, 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। हाउ पॉल dealt with weak believers, etc. First verse. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building, according to the grace of God which is given unto me. As a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth upon thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory
in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come. All are yours, and ye are Christ's, and Christ is God's. पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय पहले वचन से कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना। हे भाइयों, पहले वचन से, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। Psalms 109, 109, 110, 111, 112। हम 109 से पढ़ेंगे। David complains of his enemies to the chief musician, a psalm of David। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Hold not thy peace, O God of my praise, for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me. They have spoken against me with a lying tongue. They compassed me about also with words of hatred, and fought against me without a cause. For my love they are my adversaries, but I give myself unto prayer. And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. Set thou a wicked man over him, and let Satan stand at his right hand.
When he shall be judged, let him be condemned, and let his prayer become sin. Let his days be few, and let another take his office. Let his children be fatherless, and his wife a widow. Let his children be continually vagabonds and beg. Let them seek their bread also out of their desolate places. Let the extortioner catch all that he hath, and let the stranger spoil his labor. Let there be none to extend mercy unto him, neither let there be any to favor his fatherless children. Let his posterity be cut off, and in the generation following, let their name be blotted out. Let the iniquity of his fathers be remembered with the Lord, and let not the sin of his mother be blotted out. Let them be before the Lord continually, that he may cut off the memory of them from the earth, because that he remembered not to show mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart. As he loved cursing, so let it come unto him. As he delighted not in blessing, so let it be far from him. As he clothed himself with cursing, like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones. Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually. Let this be the reward of mine adversaries from the Lord, and of them that speak evil against my soul. But do thou for me, O God, the Lord, for thy name's sake, because thy mercy is good, deliver thou me. For I am poor and needy, and my heart is wounded within me. I am gone like the shadow when it declineth. I am tossed up and down as the locust. My knees are weak through fasting, and my flesh faileth of fatness. I became also a reproach unto them. When they looked upon me, they shaked their heads. Help me, O Lord my God. O save me according to thy mercy, that they may know that this is thy hand, that thou, Lord, hast done it. Let them curse, but bless thou when they arise. Let them be ashamed, but let thy servant rejoice. Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion as with a mantle. I will greatly praise the Lord with my mouth, yea, I will praise him among the multitude, for he shall stand at the right hand of the poor to save him from those that condemn his soul. Psalms 110. The kingdom, the priesthood, the conquest and the passion of Christ, a psalm of David. First verse से पढ़ेंगे. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power. In the beauties of holiness from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. He shall wound the heads over many countries. He shall drink of the brook in the way. Therefore shall he lift up the head. Psalms 111. The psalmist incites to praise God. First verse say, praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation.
The works of the Lord are great, sought out all them that have pleasure therein. His work is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. He hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He hath given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. The works of his hands are verity and judgment. All his commandments are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. Psalms 112. Security of the godly. First verse say, Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man sheweth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. He hath dispersed, he hath given to the poor. His righteousness endureth forever. His horn shall be exalted with honor. The wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and melt away. The desire of the wicked shall melt away. The desire of the wicked shall perish. भजन संहिता 109 अध्याय, 110 अध्याय, 111 अध्याय, 112 अध्याय हम पढ़ेंगे। 109 से 109 अध्याय पहले वचन से। प्रतिशोध की याचना, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, उस दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित कर मन वालों के पीछे पड़ा रहता था।
वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है। और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा। दाऊद का भजन 110 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरा पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मेल्किसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति 111 अध्याय पहले वचन से। यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर के भक्त का आनंद 112 अध्याय पहले वचन से। यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और
उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 17 चैप्टर 11 वर्स से 19 वर्स। 1 सैमुअल 3 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 वचन से 19 वचन और एक पहले शमूएल के 3 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने अपने व्यक्तिगत समय में अकेले में पढ़ना है। जब हम अपने व्यक्तिगत समय में पर्सनल टाइम में 2 साल का बाइबल रीडिंग 2 इयर्स बाइबल रीडिंग पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन वचनों के अंदर से हमको रहस्य भेद पवित्र आत्मा के सहायता से खोल के देगा और उसको लेकर हमने अपने रोज के जीवन में चलना है। ऐसा करते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में हम परमेश्वर के वचन से उसके भेद और रहस्य में जीते हुए हम वचन का ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे। हमारी व्यक्तिमत्व पर्सनालिटी बन जाएगी वचन। और ऐसा होते हुए जब हम परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए ले लेगा, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो इस प्रकार से ढले हुए वचन के आधार से ढले हुए हैं, हमारा वो बड़ा इस्तेमाल करेगा। और ऐसा हमें बनने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।